As for economics, there is a 46 question that I'm doing for you for standard deviation. The prices of share of the company X and Y are given below and state which company is more stable. So there is a X and Y, both two companies are there, and this is the individual series as you are seeing that. And then for individual series, I'm using for calculation of standard deviation, many methods I'm having: actual, mean, direct, and shortcut. And out of that, I'm using the actual mean method. Now X values there 25, 50, 45 likewise, and sigma X I have taken, and this is the company X, and this is company Y. Now first of all, I'm taking company X minus mean. So 25 for mean I have taken that. There is a formula sigma X upon n, so I have taken the mean here, sigma X upon n, 440 by 10, that is 44. This is the actual mean of X company X. Now I'm taking the deviation X minus mean, 25 minus 44, 50 minus 44, there will be plus, and 45 minus 44 1, 30 minus 44 minus 14, 70 minus 44 26, 42 minus 44 minus 2, 36 minus 44 minus 8, 48 minus 44 4, 34 minus 44 minus 10, 60 minus 44 16. Likewise I have taken the division from mean, and now I am making the whole square of X, that is there I have taken that the whole square of X, that is this is a whole square of x whole square, 19 into 19, 6 into 6, 1 into 1, 14 into 14, definitely minus 19 into minus 19 will be plus 361, 6 multiply 6 36, 1 multiply 1 1, 14 multiply by 14 196, 26 multiply by 26 676, 2 multiply by 2 4, 8 multiply by 8 64, 4 into 4 16, 10 into 10 100, 16 into 16 256. Likewise I have made the whole square of x square. Now this is the company X, and the sigma X square is 1710. Now this is company Y. I have taken the mean for company Y. Company Y is the sigma X is 530, and this is the mean for company Y. This is the mean of company Y. I have just made it out. This is mean is equal to sigma X upon n, that is 53. Now I have taken the deviation, that is the X minus mean, that is 10 minus 53. This is the mean division I have taken, X minus mean. So my mean is 53. Now 10 minus 53, 70 minus 53, 50 minus 53, 20 minus 53, 95 minus 53, 55 minus 53, likewise 42 minus 53, 60 minus 53, 48 minus 53, and 80 minus 27. This is the X division from X. Now make it the whole square of this, 43 into 43, 1849, 17 into 17, 289, 3 3 is 9. Likewise I have made the whole square of all these individual number, and this is the sigma X square, that is 5928. This is the company Y, and this is about the company X, and these two figures are related to company X. Now the formula I am using, that is the actual mean method. Thus the formula is standard deviation is equal to sigma X square upon n. Sigma X square is not the sigma, this is not the sigma X I have taken. Deviation from X square whole square I have taken, that is 1710. 1710 upon 10. Fine. 10 is the n, because n here is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now for calculating this, root 171, and that if you will take the root of 171, that will be 13.07. Now company Y, same formula, standard deviation is equal to sigma X square upon n, root 5928 upon here the n is 10. Now for calculation, the root 5928 upon 10, 592.8, and that is standard deviation is equal to 24.34. So this is the standard deviation I have taken for X and Y. Now they want to just get to know that which is more stable. If you want to get which is more stable, then you have to calculate coefficient of variation. Coefficient of variation, the formula of coefficient of variation is standard deviation upon mean into 100. I told you that if you want to calculate coefficient of standard deviation, then the formula will be standard deviation upon mean. That will win the proportion. So this is the absolute, this is the relative measure, and this is also the relative measure. Now the standard deviation 13.07, mean you have taken, that is 44. Here you have to take the actual mean into 100, 29.70.
y standard deviation upon mean into 100. This is for the x company and this is for the y. So after calculating the coefficient of variation, this is the 29.70, this is 49.92, which is having less variation, that will be definitely more stable. x का जो है वेरिएशन लेस है और इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है 45.92, जिसका वेरिएशन लेस है मीन से हम उसी को मानेंगे कि इसके प्राइस स्टेबल रहेंगे. तो प्राइस ऑफ x इज़ मोर स्टेबल कंपैरेटिवली y. तो x के प्राइस ज़्यादा स्टेबल है. तो ये आपका कैलकुलेशन होगा. अगर आपसे बोला जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो, तो स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन 100 नहीं करोगे इसके साथ, ठीक है. ये अब आपका परसेंटेज में निकला है क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया. इफ़ यू विल नॉट राइट परसेंटेज ओवर देयर देन आई विल कट योर मार्क्स, ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसके अंदर आपका दैट इज़ 48th क्वेश्चन. 48th क्वेश्चन में भी इसी तरह से लेकिन वो कंटिन्यू सीरीज़ का है 48th क्वेश्चन. तो 48th क्वेश्चन में क्या है आपका, देखो 48th क्वेश्चन में कंटिन्यू सीरीज़ गिवन है 5 to 10, 10 to 15 लाइकवाइज. और यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी का एक्स इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है. ये कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालनी है. कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिवीजन एंड द ग्रुप ऑफ ए एंड बी एंड विच ग्रुप इज़ मोर कंसिस्टेंट अगर वो पूछ रहा है तो आपको डेफिनेटली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो निकालना ही है. वो डायरेक्टली नहीं पूछ रहा आपसे, उसने आपसे बात करी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में. नाउ टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन 48th क्वेश्चन वी हैव टू डू. देखो 48th क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्लास इंटरवल लिया, उसके बाद मिड वैल्यू लोगे. मिड वैल्यू कैसे लोगे, 5 + 10/2, 10 + 15/2, 15 + 20/2, 20 + 25/2, 25 + 30/2 and 30 + 35/2. आप लाइकवाइज यू विल गेट द मिड वैल्यू 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5. नाउ you have to take the d, you have to calculate d. m minus a means you have to take the assume mean over there. मैंने यहाँ पर शॉर्टकट मेथड यूज़ किया. तो यहाँ पर assume mean लेंगे 17.5, 7.5 minus 17.5 10, 12.5 minus 17.5 तो 17.5 minus 75 17.5 0, 22.5 minus 17.5 27.5 minus 17.5 10, 32.5 minus 17.5 15. नाउ फ्रीक्वेंसी आप टेकन, ये फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन है, देख लो. 48th क्वेश्चन में ये 2 9 29 54 11 5, 2 9 29 54 11 5 ये फ्रीक्वेंसी है. अब सबसे पहले d का होल स्क्वायर कर लो. 10 × 10, 5 × 5 25 0, 5 × 5 10 × 100, देन 15 × 5 25. अब एक बार फ्रीक्वेंसी को d से मल्टीप्लाई करो इस पूरे को, और एक बार फ्रीक्वेंसी को d स्क्वायर से करो. एक fd बनाओ और एक fd स्क्वायर बनाओ. fd स्क्वायर के लिए क्या करोगे, 100 × 2, 25 × 9, 29 × 0, 25 × 54, 100 × 11, 25 × 5. और एक बार फ्रीक्वेंसी को सिंगल डी से मल्टीप्लाई करो. ये सिंगल डी से मल्टीप्लाई किया हुआ है. 10 × 2, 5 × 9 लाइकवाइज. ये आपका आ रहा है -20 -45 0, 270 110 75. हाउ 15 × 5 75, 10 × 11 110, 5 × 54 270, 0 × 29 0, 5 × 9 45, 10 × 2 -20. ये माइनस में आ रहा है प्लस में. सो लाइकवाइज यू विल टेक in 48th question you will take the mid value and then assuming you have taken 17.5, now you have to take the f is there and you have to make the fd square and fd whole square. अब इसमें भी यही करोगे, एक बार फ्रीक्वेंसी को d से मल्टीप्लाई करो, एक बार फ्रीक्वेंसी को d के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो. d का होल स्क्वायर कैसे निकालोगे, 10 × 10 5 × 5 0, 5 × 5 25, 10 × 10 100, 15 × 55, 15 × 15 25. fd होल स्क्वायर ये हो गया और fd हो गया आपका. fd होल स्क्वायर कैसे, 15 2 × 100 19, 2 × 100 200, 19 × 25 225, 29 × 0 0, 54 × 25 1350, 11 × 100 1100, 5 × 1 5 × 2 25 1125. टोटल करोगे दैट इज विल बी 4000 सिग्मा fd स्क्वायर. इसी को बोलेंगे सिग्मा fd स्क्वायर, ठीक है. फ्रीक्वेंसी को फिर d से मल्टीप्लाई करोगे. 10 × 2 20, 5 × 9 -45 0, 5 × 54 270, 10 × 11 110, 15 × 5 75. ये हो गया सिग्मा fd, ये हो गया 390. इसमें क्या करोगे, माइनस सारे इकट्ठे कर लो, -20 और -45 ये सारे इकट्ठा कर लो, और ये प्लस वाले सारे इकट्ठे कर लो, और उसके बाद आपस में इनको माइनस कर दो. ये आ जाएगा 465 -65, ये इन सबको प्लस करके -65 कर दो. 270 + 110 + 75 -65, ये आ जाएगा 390. अब आपका फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड के अंदर सिग्मा fd स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fd अपॉन n इंटू होल स्क्वायर, दैट इज़ अ होल स्क्वायर रूट. तो अब यहाँ पर 4000 अपॉन 110 ये वैल्यू पुट करोगे, 390 सिग्मा fd स्क्वायर है ये आपका 4000 बाई 110. fd है आपका 390 अपॉन 110 होल स्क्वायर. पहले इसको होल स्क्वायर को सॉल्व कर लो. 390 × 390, 110 × 110 दैट इज़ 151 100, 121 00.
इसके बाद डिवाइड कर लो 4000 को 110 से, ये आ जाएगा, और 152100 को 12100 से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा। अब इसके बाद माइनस करके आप इसका रूट निकालोगे तो 4.87 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये मैंने मीन लिया है क्योंकि मुझे आगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो सिग्मा एफ एम फॉर्मूला मैंने लिया सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। मैंने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है मीन निकालने के लिए। सिग्मा एफ एम के लिए ये मैंने सिग्मा एफ एम सॉर्ट आउट किया है यहाँ पर। ये एफ है और ये एम है, तो 7.5 इंटू 2 15, 12.5 इंटू 9 12.5, 17.5 इंटू 29 507.5, 22.5 इंटू 54 1215, 27.5 इंटू 11 302.5, 32.5 इंटू 5 162.5, ये है सिग्मा एफ एम। ये आपका आ गया सिग्मा एफ एम। सिग्मा एफ एम सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट मेथड मीन निकालने के लिए आ गया। मीन आपका 21.04। अब दूसरा जो आपका है सैम्पल 48 क्वेश्चन में ग्रुप ए ग्रुप बी, ये ग्रुप ए की बात थी, ये है ग्रुप ए और ये है ग्रुप बी। ग्रुप बी के लिए भी ऐसी कैलकुलेशन करोगे सेम। ग्रुप बी में भी मिड वैल्यू गिवन है आपको, मिड वैल्यू आपने सॉर्ट आउट कर ली है, तो वही मिड वैल्यू ले ली मैंने क्योंकि एक्स तो सेम है, फ्रिक्वेंसी अलग है। डी भी वही आ जाएगा -10 -5 0 5 10, क्योंकि डी कैसे आएगा मिड वैल्यू माइनस एज्यूम्ड मीन। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। अब डी स्क्वायर कर दोगे, ये भी सेम आपकी फिगर आ जाएगी जो आपने पिछले अभी ग्रुप ए के लिए किया था। 10 100 25 0 25 100 225, इसी का होल स्क्वायर कर दिया। अब एक बार एफ डी करो और एक बार एफ डी होल स्क्वायर करो। एफ डी स्क्वायर में 900, 9 इंटू 100, 11 इंटू 25 275, 19 इंटू 0 0, 32 इंटू 25 800, 27 इंटू 100 2700, 13 इंटू 225 2925, और ये आ गया सिग्मा एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7600। अब एफ डी के लिए क्या करोगे, 9 इंटू 10 90, 11 इंटू 5 -55, 18 इंटू 0 0, 32 इंटू 5 160, 27 इंटू 10 270, 13 इंटू 15 195, और ये आ गया आपका सिग्मा एफ डी। अब इसको सॉल्व करोगे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका। इसको पुट करोगे 7600 बाय 110 एंड दैट इज़ 480 बाय 110 होल स्क्वायर। इसको डिवाइड कर लोगे और इसको होल स्क्वायर करके ये आ जाएगा आपका 230400 12100। इसको डिवाइड करोगे 19.04, इसको माइनस करोगे आपस में और फिर रूट निकालोगे तो 7.074 ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। अब इसका ग्रुप ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ये आ गया आपका 23.18। ये मीन आपने जो निकाली थी वैल्यू 21.04, स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने ग्रुप ए के लिए निकाला था 4.87 इंटू 100 23.18, ये आ जाएगा आपका। और यहाँ पर ग्रुप बी के लिए आपने मीन निकाला है, इसके अंदर भी आपको एफ एम लेना पड़ेगा, ठीक है। सिग्मा एफ एम और सिग्मा एफ सेम मीन आपका मीन इसमें यहाँ पर आपको मीन निकालना पड़ेगा। पहले मीन निकालने के लिए आपको सिग्मा एफ एम निकालना पड़ेगा। सिग्मा एफ एम के लिए आपको फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7.5 इंटू 9 67.5, 12.5 इंटू 11 दैट इज़ 137.5, और 17.5 इंटू 18 दैट इज़ 315, 22.5 इंटू 32 दैट इज़ 720, 227.5 इंटू 27 दैट इज़ 42.5, 32.5 इंटू 13 दैट इज़ 42.422.5। ये सारा प्लस करोगे सिग्मा एफ एम आ जाएगा 2405। फॉर्मूला लगेगा मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपन सिग्मा एफ दैट इज़ 2405 अपॉन 110, और ये आ जाएगा आपका मीन 21.86। 21.86 को ये आ जाएगा आपका मीन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए 7.07 अपॉन 21.86 इंटू 100, ये आ जाएगा 32.34। यहाँ पर ग्रुप बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 32.34, और यहाँ ग्रुप ए का आया था आपका 23.18। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आता है वही मोर स्टेबल होता है, तो दे आर मोर कंसिस्टेंट इज ग्रुप ए कंपैरेटिवली ग्रुप बी। दिस विल बी योर आंसर। इसके आपको मार्क्स मिलेंगे कि आपको आप बता रहे हो कि कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट है। अगर आपको बोलता है कि कौन सा कंसिस्टेंट है तो आपको ये निकालना ही होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और ये परसेंटेज की फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। लाइकवाइज यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस।